Namaskar and welcome to you all. In last video, I discussed about the lesson of plus one standard from the other book, from the next book. The name of that book is Snapshots. Snapshots means that supplementary reader. So, in last video, we have discussed about the story steps. Only 6 points we discussed in the last video. Today, I am going to discuss about the rested 4 steps of the story. So, take a bit flashback. First one, 2 Armenian boys. Second, Murad sitting on a beautiful white horse. Third, poverty-stricken Garaglanian family. Fourth, Murad had stolen the horse for a ride. Fifth, crazy streak in the family. Sixth, both rode together. In your last video, we discussed up to 6 points, the steps of the story. Today we will discuss the rested 4 points. I am going to tell you. 7th, hiding the horse. 8th, John Barrow's white horse stolen. 9th, Murad and the narrator ran into the farmer on the way. And 10th, horse sent back to Barrow's barn. And now we will take the translation through the help of this book. Hiding the horse. The narrator realized that Murad had been taking those early morning rides for quite some time. Means कथाकार नरेटर की समझ में आया कि मुराद काफी पहले से ही जल्दी सुबह से घुड़सवारी करता आ रहा था. उस सुबह वह he had come for him that morning. उस सुबह वह उसके लिए आया था. He knew that Aram also longed to ride. और वह जानता था कि आराम को भी सवारी करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी. Murad took the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. Murad घोड़े को चुपचाप अंगूरों के एक सुनसान बखार में ले गया, सुनसान स्थान पर. Then they walked home. फिर वे घर की तरफ चल दिए. Thus they could hide the horse. इस प्रकार से उन्होंने घोड़े को छुपा दिया. Murad had quite a deep understanding of the horses. मुराद को घोड़ों की काफी अच्छी समझ थी. Horses understood him and he had a way with them. घोड़े उसे समझते थे और उसको घोड़ों से उनकी पटती थी. Now next point, John Barrow's white horse stolen. John Barrow जो फार्मर है उसका सफेद घोड़ा चुरा लिया गया. John Barrow was an Assyrian. John Barrow असीरिया का रहने वाला था. He came to Uncle Khosrow one afternoon. एक दोपहर को वह अंकल खोसरो के पास आया. His white horse had been stolen last month. पिछले महीने उसका सफेद घोड़ा चुरा लिया गया था. And was not found yet. अभी तक नहीं मिला था. Uncle Khosrow became irritated. अंकल खोसरो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया. He shouted. वह चिल्लाया. It's no harm. What is the loss of a horse? कोई नुकसान नहीं. घोड़े का नुकसान भी कोई नुकसान है. John Barrow told him. John Barrow ने उसे बताया that he had to pay $60 for such a horse. कि उसे बताया उसे इस प्रकार के घोड़े के लिए $60 देने पड़े थे. He also told. उसने ये भी बताया that he had to walk 10 miles to go there. और कि उसे बताया कि उसे वहां जाने के लिए 10 मील चलना पड़ा था. His uncle told that he had legs. उसके चाचा ने बताया कि उसके पास टांगे हैं. Khosrow replied. Khosrow ने उत्तर दिया that he should pay no attention. उसे इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. The farmer got up. फार्मर उठ गया and went away from there. वहां से चला गया. The narrator told Murad of John Barrow's visit. Narrator told Murad. और वर्णनकर्ता ने मुराद को जॉन बायरो के आने के बारे में बताया. He also wanted मुराद. और वो मुराद से चाहता था that he shouldn't return the horse until he learned to ride. वो उसे तब तक घोड़ा वापस ना करे जब तक वो सीख ना जाए सवारी करना. मुराद जो है चिल्लाया that the horse must go back to its true owner. कि जो घोड़ा है उसके असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए. He couldn't wait for more than 6 months. 6 महीने से ज़्यादा वो इंतजार नहीं कर सकता था. Every morning they rode. हर सुबह वो सवारी करते थे. And every morning और हर सुबह when the narrator rode alone the horse. जब वो अकेले सवारी करता था threw him down. अकेले सवारी कर रहा था तो हॉर्स ने उसे गिरा दिया. And ran away और भाग गया. Next point.
मुराद एंड द नरेटर रैन इनटू द फार्मर ऑन द वे। मुराद और कथाकार की रास्ते में किसान से मुलाकात। बाई चांस, अकस्मात, अचानक। बोथ ऑफ देम केम अक्रॉस जॉन बायरो। उन दोनों की जॉन बायरो से मुलाकात हो गई। ही वॉज ऑन हिज वे टू द टाउन। वह शहर की ओर जा रहा था। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली। किसान ने बड़ी बेचैनी से घोड़े का अध्ययन किया। ही आस्क्ड द नेम ऑफ द हॉर्स। उसने उस घोड़े का नाम पूछा। मुराद रिप्लाइड। मुराद ने उत्तर दिया, माई हार्ट, मेरी जान। बायरो स्वोर, बायरो ने शपथ ली, दैट इट वॉज द सेम हॉर्स। बायरो ने कसम खाई कि ये वही घोड़ा था। दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिम मैनी वीक्स एगो, जो उससे कई सप्ताह पहले चोरी हो गया था। देन ही लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तब उसने घोड़े के मुंह में देखा। इट वॉज हिज हॉर्स, ये उसका घोड़ा था। परहैप्स द हॉर्स वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स। शायद ये घोड़ा जो था वो घोड़े का जुड़वा था। He couldn't doubt the integrity and honesty of their family. वह उनके परिवार की निष्ठा, इंटेग्रिटी, निष्ठा और ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता था। Horse sent back to Byro's barn. घोड़े को बायरो के बखार में वापस भेज दिया गया। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही दे टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड। वे घोड़े को जॉन बायरो के अंगूरों के खेतों में ले गए। दे पुट इट इन द बार्न। उन्होंने उसे उस जगह पर छोड़ दिया। मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। मुराद ने घोड़े के चारों ओर अपनी बाहें डाली। पैटिड, उसे थपथपाया। इट, पैटिड इट, इसे थपथपाया। एंड देन दे वेंट, तब वे चले गए। दैट आफ्टरनून बायरो केम टू देयर हाउस। इसके दोपहर बाद बायरो उनके घर आया। ही शोड द नरेटर्स मदर द हॉर्स। उसने नरेटर की माँ को वह घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, हैड रिटर्न, जो चुरा लिया गया था वापस कर दिया गया था। अंकल खोसरो शाउटेड टू कीप क्वाइट। चाचा खोसरो शांत रहने के लिए चिल्लाया। ही सेड, उसने कहा, दैट द हॉर्स हैड बीन रिटर्न, कि घोड़ा वापस कर दिया गया था। दे शुड पे नो अटेंशन टू दैट, उसे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे परिवार, हमारे दादा परदादा या हमारे पेरेंट्स की जो एक फैमिली बैकग्राउंड से जो एक अच्छी क्वालिटी चली आ रही होती है, हमें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारी जो एक कंसाइंस है, इनर सोल है, वो कहीं ना कहीं हमें पैंक्स करती है और कहीं ना कहीं वो रियलाइज करवाती है। तो अपनी गलती जो करते हैं हमें उसे मानना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर दो बच्चों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और आपको भी बहुत कुछ सीखना है। आप बहुत सेंसिबल हैं, अंडरस्टूड हैं। थैंक यू।